S&P ग्लोबल में जो आपका प्रोफाइल था वहाँ पर क्या करते थे आप? So that was not into core finance. So जो financial models हमें brokers provide करते हैं, we just have to work on that. That was a secondary research, not primary research. And how was your experience of working with Gallagher with S&P Global? So it was good, but it was more kind of monotonous work. So I just wanted to get into the proper finance role. BCom is just a degree. वहाँ पे हम theoretical knowledge gain करते हैं. But if you want to get into the financial role, so कुछ skills होते हैं which you have to develop. चाहे आप MBA कर रहे हो, CFA कर रहे हो, BCom कर रहे हो. I have done my homework also before coming to a Wall Street. And they suggested me that अगर तुम्हें properly समझना है कैसे करता है, they recommended your name as well. Like वो 19 years से हैं जो ये classes कर रहे हैं. There are many students who got placed. बहुत हो गया पढ़ाई, बहुत हो गया जॉब, चलो अब शादी कर लेते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है तुम जी लो अपनी जिंदगी टाइप वैसे? सर शादी का प्रेशर कर आते ही है obviously, but there are many students who do BCom जो शायद CA की लाइन में नहीं जाते हैं, शायद ACCA की लाइन में एक साथ नहीं जाते हैं, चाहे CFA एक साथ नहीं करते हैं या FRM एक साथ नहीं करते हैं। तो क्या उनके लिए भी कुछ करियर में हो सकता है, हुआ है? I have a special guest today on our podcast, Nidhi Tiwari, who is a BCom student, then started working into accounting domain, and eventually, after the financial modeling and valuation program from the Wall Street School, she got placed in an investment banking role. Right? So this podcast is not about glorifying the Wall Street School. It is about her journey, because there will be many Nidhi Tiwaris and many Himanshu Jains who are BCom graduates जो शायद उस टाइम पर प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं ऑप्ट करते हैं। तो किस तरह से करियर बनाया जाए, क्या उन्होंने मिस्टेक्स किया, क्या मिस्टेक्स से उभर कर उन्होंने किस तरह से अपने आप को इतना परिपक्व बनाया, तो वो चीज़ हम निधि से समझते हैं। ठीक है निधि, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। hello sir, hi. ठीक है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। Hello, hi. My name is Nidhi Tiwari. I have done BCom honors in 2019. I'm from Gorakhpur, and I have started my career in 2022. And I've started working with S&P Global as a research associate. But that was not enough, so I just opted for the financial modeling course from Wall Street, and that really helped me to get into the valuation course, valuation profile in Gallagher and Mohan. So I am really thankful for that. ठीक है, तो निधि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप गोरखपुर से हैं, तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद पहली जॉब आपको कैसे मिली? So, sir, like as a graduate, it is very tough to get a job, right? So I started applying. So थोड़ा बहुत मुझे finance का knowledge था, but not completely. So as a graduate, I got hired in S&P Global. So I've just worked there for 3.5 years. Then I joined Adroit Financials, and I was working as an equity research analyst. But still, I feel like that there is something which I'm lacking. So I heard about the Wall Street School from my friends who have joined this course and just doing really very good in their career. So after that, I joined financial modeling course from Wall Street, and now I got placed in Gallagher and Mohan as a financial analyst, where my core work is into valuation and underwriting. Got it. Yeah. तो S&P ग्लोबल में जो आपका प्रोफाइल था वहाँ पर क्या करते थे आप? So that was not into core finance. So जो financial models हमें brokers provide करते हैं, we just have to work on that. That was a secondary research, not primary research. And how was your experience of working with Gallagher with S&P Global? So it was good, but it was more kind of monotonous work. So I just wanted to get into the proper finance role, and that was not a scene over there. So I was just looking for a profile like that, which I have got now. Understood. Yeah. तो फिर शिफ्ट क्यों किया वहाँ से S&P से, और कैसे कर पाए? So सर मुझे ऐसा मैंने आपको बताया, मुझे कोर फाइनेंस में ही जाना था. So वहाँ पे मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, and as a graduate also nobody is just it was very tough to break into the valuation course. So I was just trying. So when I joined this Wall Street financial modeling program, so after that
कुछ skills थे which I have developed over here. I just got to learn that how to analyze the companies, how to work on the models, how you just link the financials. So with the help of that, I just gave again interview, like Wall Street only just provided the placement program. Why that my resume got shortlisted, and I have given an interview over there, and I got selected. गॉट इट। तो जो मुझे ये आपसे पता करना है कि एज अ बीकॉम पर्सन, बिकॉज कितने सारे बीकॉम ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, सो क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो बीकॉम या बीबीए प्रोड्यूस कर रहा है इतने लाखों में, एज कंपेयर टू जो आप जब कॉर्पोरेट्स में वर्क करती हैं, तो उसमें कितना सिमिलैरिटी है जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा और जो आप कॉर्पोरेट्स में फील करती हैं? मतलब इज देयर अ गैप और इट इज द स्टडीज आर गुड? जैसे आपने बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया था, उसमें गैप है या मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक प्रोफिशिएंट है? So there's a huge gap I feel, because BCom is just a degree. वहाँ पे हम theoretical knowledge gain करते हैं. But if you want to get into the financial role, so कुछ skills होते हैं which you have to develop. चाहे आप MBA कर रहे हो, CFA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, so you should have attained those skills. So without that skill, if you are just aiming to get into the corporate, into finance role, so I think it would be like really very very tough to get into. Got it. Got it. तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि मुझे अब और अपने अंदर स्किल्स करने हैं? आप यू स्टार्टेड वर्किंग, तो अपने कोलीग से बात किया, अपने पीयर्स को देखा, या किस तरह से पता चला कि मुझे अपने अंदर और भी इक्विपमेंट करना है, आई नीड टू इक्विप माय सेल्फ मोर? Okay, so sir, finance is really vast, right? आप IAS, BAS, CF, everything is going, like if you are not linking everything together, no, so there's no sense of working with finance. So there were some friends of mine like who were into a better profile. Like mine was also good, but that was not into finance. So they suggested me like start working like this way. So I have worked on myself. I have done my homework also before coming to a Wall Street, and they suggested me that अगर तुम्हें properly समझना है कैसे करता है, they recommended your name as well. Like वो 19 years से हैं जो ये classes कर रहे हैं. There are many students who got placed as opportunity मिलती है, and the way you make other student understand, that is very nice because it sounds interesting, not boring. क्योंकि हमारे lectures बड़े होते हैं, 5-6 hours के होते हैं. So my friend suggested me कि आप अगर ऐसे जाओगे तो आप एक proper path में move कर पाओगे, and wherever you wanted to land up, you could go there. You could reach your destination like that way. Got it. तो गोरखपुर से की लड़की उसके बाद बाहर वर्क कर रही है, तो फैमिली प्रेशर नहीं था कि पेरेंट्स ने नहीं बोला कि चलो अब बहुत हो गया पढ़ाई, बहुत हो गया जॉब, चलो अब शादी कर लेते हैं? ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है तुम जी लो अपनी ज़िंदगी टाइप्स? वैसे सर शादी का प्रेशर कर आता ही है ऑब्वियसली, बट दैट वाज नॉट माय चॉइस. सो अगर उन्होंने इतना पढ़ाया है, लिखाया है, इंडिपेंडेंट रखा है मुझे, सो ऑफ कोर्स they should also respect, and they are respecting my choice as well. But ठीक है, as a parents they will push, but I have to reach a certain stage where whenever I'll reach over there, then I'll get married. Understood, fair enough. तो फिर आगे चल के जैसे आपने खाली बीकॉम किया, तो आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो आपके लिए फिर आगे क्या, मतलब you have got into yes a finance role which is very very good. तो अगर ग्रो करना है तो उसके लिए फिर क्या क्या चीज़ें अब आपको करनी चाहिए? ओके सर, जो मैंने आइडेंटिफाई करा है अभी, लाइक आई एम लाइक अ कोर फाइनेंस पर्सन, मुझे उसमें इंटरेस्ट है. सो फॉर मी आई स्टार्ट माई CFA नाउ. So I'm just planning to give my CFA in Feb next year and level 2 in November. So I'm just planning like that way, because graduation करके सिर्फ जाना इट्स क्वाइट टफ, इट्स वेरी टफ इन फैक्ट. बट अगर आपके पास एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हो लाइक CFA, CA और समथिंग लाइक दैट, सो वो आपको बेटर पोजीशन पे पुश करने के लिए बहुत हेल्प करती है, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आप गेन कर सकते हो इन कोर्सेज से. व्हाट डू आई फील? बिल्कुल ठीक है. तो खाली बीकॉम से नहीं होगा, मतलब आपको शायद ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कोर्स है आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म दे देगा जिसमें आप फाइनेंस
Yes. की दुनिया में एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको अपने करियर में क्रेडेंशियल्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रोफेशनल कोर्सेज, करेक्ट सर। राइट? वो चाहे ACCA हो, चाहे CFA हो, चाहे FRM हो, चाहे CMA हो, लेकिन वो डिग्रीज की वैल्यू है Correct. और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो जो आप एंड्रॉयड में कर रहे थे, आपने बताया कि आप इक्विटी रिसर्च के प्रोफाइल में थे, उधर एग्जैक्टली क्या काम करते थे? सर वहाँ पे बेसिक रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते थे, लाइक इंडस्ट्री पे। आई वाज लाइक इन S&P ग्लोबल, आई वाज वर्किंग ऑन द पावर सेक्टर फॉर लास्ट 3.5 इयर्स। सो मेरे को पावर सेक्टर पे सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना होता था। सो व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग financial model like in Wall Street, so मैंने उनको पुश करा कि we could also make models over there, so I started that as well, but still sir जो growth मुझे चाहिए थी, like just जैसी growth चाहिए थी, I was not getting over there. So because of that I wanted to switch in another company into core finance. Got it. तो जैसे आपने बताया इक्विटी रिसर्च आप कर रहे थे पिछले 3-3.5 साल से, Yeah. ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि विद कमिंग ऑफ AI कितनी सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च का जो काम है वो हम AI से बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम घंटों लगाते थे? सर अभी भी वो फेस कर रहे हैं हम, लाइक पहले रिसर्च रिपोर्ट बनाने में 5-6 days लग जाते थे, हाँ। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ क्लॉड एंड ChatGPT वी कुड मेक इट लाइक इन 2-3 hours. हाँ, तो जो आप काम कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ये तो एकदम से ऑब्सोलीट हो गया? क्योंकि अब तो AI ने इतना सारा चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, तो क्या आपकी कंपनी यूज़ करती है AI को? सो नॉट एट दैट लेवल. पर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी फेज आउट हो जाएगा? यस सर, डेफिनेटली. हाँ, तो इसमें एक सेंस ऑफ ऑब्सोलीटनेस आती है। यस सर, कंप्लीटली. तो फिर आपको मतलब चलो अभी तो आपका प्लेसमेंट हो गया और बहुत अच्छे प्रोफाइल में प्लेसमेंट हुआ, लेकिन एक जब आप वर्क कर रहे थे तो एक सेंस ऑफ ऑब्सोलीटनेस नहीं था कि यार ये काम तो ChatGPT जो मैं 1 हफ्ता लगाती हूँ वो तो 2-3 घंटे में खत्म कर देगा? यस सर, था, कंप्लीटली था. दैट इज आल्सो अ रीजन. ओके, और फिर तो मतलब व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग निधि इज कि अगर हम AI को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. करेक्ट सर. राइट? तो आपने अपने आप को किस तरह से इतना सक्षम बनाया है कि आप AI को अपने साथ में लेकर आप आगे आप अपने आप को ज़्यादा स्किलफुल बना पाएंगे? ऐसा क्या क्या किया है आपने? सर अभी जो मैंने कोर्स अभी आपका ज्वाइन करा है, तो मैंने उसकी सारी देखे सब्जेक्ट्स देखे थे. मतलब यू आर जस्ट नॉट कवरिंग ओनली द फाइनेंशियल मॉडलिंग थिंग, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. विद दैट देयर आर अदर कोर्सेज ऑफ AI जो मुझे लगा कि दैट कुड हेल्प मी टू, लाइक विद फाइनेंस आई कुड add, that could be a complementary thing, because of course if you're making the research report or working like that, so it will, we are just giving the command to the AI and it's working like that. So उससे वो कोर्स भी मैंने ज्वाइन करा हुआ है, जिसकी वजह से I could learn other skills as well to my core work. और वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करना, अपस्किल करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes. तो मैं 2019 में वापस जाता हूँ. आई वांट टू आस्क कि कैन is there anything जो निधि of 2019 would have done differently than what she has done today? Yes sir. So what I've realized, like whatever skills which I'm learning right now, I would have done these courses like 6 years back. So I would have at different place right now. अगर ये realization अगर और जल्दी होता तो मैं और आगे होती. But still it's not late. So बस ये ऐसा time issue है, realization late हुआ. अच्छा, ठीक है. See, there is never a wrong time to do the right thing. ठीक है, तो अच्छी बात है. एंड ये और आपके साथ ये था निधि की, एंड वन ऑफ द रीजंस यू आल्सो गॉट प्लेस वाज कि आप अपने बहुत कंसिस्टेंट थी अपने काम को लेकर. जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते थे आप उसको पूरा कंप्लीट करती थी ड्यूटीफुली, राइट, अलॉन्ग मैनेजिंग योर वर्क आल्सो, एंड दैट्स द रीजन यू हैव गॉट प्लेस्ड. मुझे आपसे पूछना है, एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड वांट टू गिव टू द यंग BCom ग्रेजुएट्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी फ्रॉम गोरखपुर, राइट, कि किस तरह से अपने, अगर आप करियर कॉन्शियस हैं तो किस तरह से अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए इफ दे आर इन द 2nd, 3rd ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन? सर आई वुड से दैट आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, सो आई वुड से कि BCom इज जस्ट अ डिग्री, इट विल नॉट प्लेस यू एनीवेयर लाइक प्रॉपरली. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स स्टार्टिंग से ही. If you are at your BCom 3rd year,
So start giving your CFA level 1 exam, start studying for it, so that अगर आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होता है तब तक आप CFA level 1 या level 2 क्लियर क्वालिफाई कर लो. सेकेंड, अपना एक्सेल बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, अपना एडवांस एक्सेल. तीसरा, स्टार्ट वर्किंग ऑन द मॉडल्स लाइक ISBS and CF. अगर आप ISBS क्या होता है, मतलब जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ओके, सो हम जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं दैट इज जस्ट अ डेफिनेशन. आप इतना कोर नहीं पढ़ सकते हो, बट आप अगर एक मॉडलिंग कोर्स करते हो तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो कैसे मूव करती है, लाइक इनकम स्टेटमेंट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, बैलेंस शीट आपके पास कितना कैश है, कितने असेट हैं, एंड कैश फ्लो क्या कैश मूवमेंट है. आप जब किसी बिजनेस को एनालाइज करते हो तो आपको ये तीनों चीज़ साथ में एनालाइज करना होता है. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही बिल्ड करना पड़ेगा. तो ये आपको बेटर CFA या फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स से ज़्यादा प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो सकता है. बहुत बढ़िया, ठीक है. एंड any feedback about the Wall Street School's financial modeling program, how it has been for you? So जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स कॉलीग्स ने बताया that I should have attend this financial modeling course to get expertise or and improve my skills. So I will also recommend to other people whosoever wants to get into the finance and who is interested into it. I would say they should start their CFA or financial modeling course so that their skills could get improved. बढ़िया, बहुत अच्छा निधि. मतलब इट्स बीन ग्रेट टू नो यू, यू नो लिटिल बिट ऑफ अबाउट यू. एंड आप बहुत गट्सी हो, इतनी दूर से आप मतलब यू बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली सो दैट यू कैन हैव अ बेटर करियर. हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि, एंड आई थिंक दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव दैट यू आर मेकिंग ऑफ अ वेरी वेरी गुड करियर अहेड ऑफ यू. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much.